ખૂબ આનંદનો વિષય છે। આ પવિત્ર ભૂમિની અંદર આપ સૌનું આગમન થયું। પરમ પૂજ્ય રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય શ્રી પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ભારતના સંતોની અંદર જેમની પ્રથમ ગણના થાય છે એવા રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય શ્રી પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના આપ સૌને આજે હૃદયથી આશીર્વાદ છે। આચાર્ય પદ્મસાગર સુરી મહારાજ એમની જન્મભૂમિ બંગાળ અજીમગંજ મુર્શિદાબાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ દીક્ષા ગ્રહણ કરે એમને 68 વર્ષ થયા। ભારત ભ્રમણ 1,50,000 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરીને ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર એમને એમની પદયાત્રા કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિનો સંદેશ ધર્મનો પ્રચાર કરીને ઘણા લોકોને સારા માર્ગની અંદર જોડવા માટે તેમણે ખૂબ જ અથાગ પ્રયત્ન કર્યો અને એ પ્રયત્નથી આજે ભારતની અંદર અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર જે પણ જાગૃતિ આવી છે એમાં પ્રારંભિક શરૂઆત ફક્ત ને ફક્ત જો યશ જાય છે તો રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય શ્રી પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબને પદયાત્રા કરતાં કરતાં 97ની અંદર નેપાળ ભારતની બહાર પદયાત્રા કરતાં કરતાં પહેલી વાર સંપૂર્ણ પોતાના જૈન સાધુના આચાર વિચાર પ્રમાણે એમને એમની પદયાત્રા કરીને ત્યાંના રાજાને પણ પ્રતિબોધ પમાડ્યો। ત્યાં એક ખૂબ જ સુંદર જિનાલય મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરાવીને ખૂબ જ ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભારતીય શિલ્પકલાનો એક પરિચય ત્યાંના નેપાળના વાસીઓને આપવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ ઘણી બધી જગ્યાએ યુકેની અંદર, આફ્રિકાની અંદર, યુએસએની અંદર અલગ અલગ દેરાસરોની અંદર જે અંજન સલાકા થઈ એ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની નિશ્રાની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ પાલીની અંદર, પૂનાની અંદર, કલકત્તાની અંદર આ બધા જગ્યાએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અંજન સલાકા કરાવીને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ત્યાં આગળ મૂર્તિઓ બિરાજમાન કરવાઈ। આ એક સુંદર એક અવસર અહીંયા આવ્યો છે વોશિંગ્ટન ડીસીનો, જે અમેરિકાની અંદર વ્હાઇટ હાઉસની બાજુમાં જ ફક્ત 30 કિલોમીટર દૂર એક સુંદર જિનાલય ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભારતીય શિલ્પનો પરિચય કરાવવા માટે ત્યાંના જૈન સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ એમને સુંદર એક આયોજન કર્યું છે અને એની અંજન સલાકા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો એક ભવ્ય પ્રસંગ આ એક પવિત્ર ભૂમિ શ્રી મહાવીરજી આરાધના કેન્દ્રની અંદર આજથી પ્રારંભિક શરૂઆત થઈ છે। 30 તારીખે એની પૂર્ણાહુતિ થશે। અમેરિકાથી જે ભગવાન પધાર્યા છે એ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની નિશ્રાની અંદર 30 તારીખે એની પ્રાણ આરોપણની ક્રિયા થશે। ભારતીય સંસ્કૃતિનું શું મહત્ત્વ છે, શિલ્પનું શું મહત્ત્વ છે અને વિદેશની અંદર દેરાસરોનું શી આવશ્યકતા છે અને ત્યાંના લોકો શી રીતે ધર્મ પ્રાપ્ત કરી શકે એક પરમાત્માનું આલંબન લઈને ત્યાં આગળ આજે ભારતના જે પણ નિવાસી ત્યાં રહે છે, જૈન હોય, હિન્દુ હોય, એ લોકો પોતાના ધર્મસ્થાનને ભૂલ્યા નથી। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પણ મંદિર એટલા બની રહ્યા છે, એવી જ રીતે જૈન દેરાસરનું પણ એટલું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। એના વિશે આપણને સચોટ માહિતી પૂજ્ય રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આપણને આપશે। આજે એમની ઉંમર 88 વર્ષની ઉંમર છે, છતાં પણ પદયાત્રા કરીને આજે પણ એમની પદયાત્રા ક્યારેય રોકાઈ નથી અને આ એક સુંદર કોબા પવિત્ર ભૂમિની અંદર આપ પધાર્યા છો। એ પવિત્ર ભૂમિની અંદર એક વર્લ્ડની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી અને વર્લ્ડનું સૌથી મોટું એક મ્યુઝિયમનું નિર્માણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કરી રહ્યા છે
અને એનું ઉદ્ઘાટન આપણા ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ 4 થી 5 વખત એમને કહેવડાયું ઉદ્ઘાટન તો હું જ કરીશ, અને 2024ની અંદર એ ઉદ્ઘાટન મ્યુઝિયમનું નરેન્દ્ર મોદીજીના હાથે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની અધ્યક્ષતામાં અને એમની નિશ્રાની અંદર 2024ની અંદર લગભગ 125 કરોડનું એ મ્યુઝિયમનું નિર્માણ આજે થઈ રહ્યું છે અહીંયા કોબાની અંદર. 2.5 લાખથી વધારે ગ્રંથો અહીંયા સુરક્ષિત છે. 3.5 લાખથી વધારે પ્રિન્ટેડ પુસ્તકો અહીંયા હયાત છે. એનું બધું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન, સંપૂર્ણ આશીર્વાદ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સામે આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપી રહ્યા છે અને સંપૂર્ણ દેખરેખ એમની નિશ્રાની અંદર થઈ રહ્યું છે. હવે આપણે રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય પદ્મસાગર સરસ્વતી મહારાજ સાહેબના આપણે એમના આશીર્વાદ લઈએ અને ભારતીય શિલ્પનું અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું શું મહત્ત્વ છે અને વિદેશમાં જૈન મંદિરોની શું આવશ્યકતા છે, હિન્દુ મંદિરોની શું આવશ્યકતા છે, એ આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આશીર્વાદ સ્વરૂપે તમને અને મારા બધાનું કલ્યાણ થાય એના માટે આપણને એક આશીર્વચન સંદેશ આપણને આપશે. आप सबों को खूब खूब धन्यवाद. बड़ी जिज्ञासा लेकर के आप लोग आए हैं. हमारी भारतीय परंपरा जगत के इतिहास में सबसे पुरातन इतिहास है. ये देश एक प्रकार से कहा जाए तो तीर्थ भूमि है. हर प्रांत में अपने मंदिर मिलेंगे, हर प्रांत के अंदर धार्मिक प्रजा मिलेगी. आज तक हजारों वर्षों से अपनी परंपरा का निर्वाह इस देश ने किया है. बहुत तूफान आए, बहुत उपद्रव हुआ, बहुत बाहरी आक्रमण हुआ, फिर भी हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और व्यवस्थित है. भारतीय परंपरा में मंदिरों का, मूर्तियों का बहुत बड़ा एक लंबा इतिहास है. मंदिरों के पीछे हमारा इतिहास छिपा है, हमारी परंपरा छिपी है. इन मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं होती हैं वो एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे आत्मा का ही एक प्रतीक है. आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय उन मूर्तियों के द्वारा होता है. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मूर्ति का बहुत महत्व रखा गया. ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, मानसिक शांति के लिए, प्रार्थना के लिए, जिसको कहा जाए एक बहुत बड़ा उपचार केंद्र है जो हर तरह से अपने लिए उपयोगी बनता है. आप जिस दृष्टि से देखना चाहें तो भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा या जैन परंपरा में आज तक मंदिरों का, मूर्तियों का एक अलग इतिहास है. तो ये वॉशिंगटन में रहने वाले हमारे जैन भाई बंधु, समाज के लोग, वो चाहते हैं कि हमारे संस्कार व्यवस्थित रहें. आने वाली प्रजा हमारी संस्कृति को समझें, अपनी परंपरा को समझें. इस दृष्टि से बहुत जगह पर मंदिरों का निर्माण अन्य देशों में, अन्य प्रांतों में हुआ है. तो यहाँ पर भी वॉशिंगटन में भी इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई. तो ये मांत्रिक उपचार के द्वारा जैनाचार्यों के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया होती है. तो वो प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया के लिए ही ये प्रतिमाएं यहाँ पर लाई गई. अनुष्ठान विधि पूर्ण होने के बाद ये सारी प्रतिमाएं वहाँ शुभ मुहूर्त के अंदर प्रतिष्ठित की जाएगी. धन्यवाद तो उन लोगों को है कि विदेश में रह करके भारतीय परंपरा को वो भूले नहीं. हमारी राष्ट्रीय परंपरा है, इसके अंदर मंदिरों में हमारा एक प्रकार का शिल्प होता है. वो शिल्प भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. आपने आबू देखा होगा, राणकपुर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर, हिंदू मंदिर हों या जैन मंदिर हों, हर जगह शिल्प की रचनाएं होती हैं और उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं. इतना समय नहीं कि मैं आपको पूरी तरह उसे समझा पाऊँ, परंतु बड़ा वैज्ञानिक महत्व है उसके पीछे. मंदिर के अंदर भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, मानसिक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रभु की प्रार्थना और हम स्तुति करते हैं. वो मंत्र गर्भित स्तुति होती है
जो हर तरह से हमारे शारीरिक मानसिक आरोग्य को प्रदान करने वाली बनती है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के एक धार्मिक विधि अनुष्ठान, मांत्रिक अनुष्ठान प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग पर किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से इन प्रतिमाओं को लेकर अपने योग्य स्थान जहाँ इनका मंदिर निर्माण हुआ है, बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, वहाँ पर मंदिरों के विषय में पूरी जानकारी वहाँ दी जाएगी। जैन सेंटर भी बन रहा है और काफ़ी साहित्य भी वहाँ पर रहेगा। हिंदुस्तान का प्राचीनतम जिसको कहा जाए दर्शन और साहित्य आज जैनों के पास सुरक्षित है। हमारे यहाँ भी करीब 3 लाख जितने प्राचीन ग्रंथ जो 500, 600, 700 वर्ष प्राचीन आपको यहाँ मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक प्रकार के ग्रंथ हैं, उसके अंदर दार्शनिक हैं, काव्य का है, साहित्य भी है, इतिहास भी है, आयुर्वेद भी है, सब प्रकार के ग्रंथ हैं। तो रिसर्च करने वाले को बड़ी सुविधा रहेगी। इस दृष्टि से इस केंद्र का निर्माण किया है। प्रिंटेड बुक्स भी बहुत हैं जो दार्शनिक और अलग अलग प्रकार का इतिहास, हर प्रकार की भाषा, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, कन्नड़ में, हर जगह के भाषाओं के अंदर लिखे हुए काफ़ी ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं। लोग काफ़ी आते हैं, लाभ भी लेते हैं। तो इस केंद्र के अंदर में ये प्रतिष्ठा का शुभ अवसर मिला, मेरी उपस्थिति रही और लोगों की भावना भी ऐसी रही। तो ये काफ़ी सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है और उस कार्यक्रम के अंदर अगर आप सबकी अनुकूलता हो तो ज़रूर आइए। और भी बहुत सी बातें हैं, जब समय तो आज है नहीं इतना मैं आपको समझा पाऊँ, परंतु बहुत कुछ आपको कह दिया संक्षिप्त में। फिर भी आप लोग आए हैं और बड़ी सुंदर भावना लेकर के आए, तो हृदय से आप सबों को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। इस तरह से पूरे भारत में भ्रमण करते हुए लगभग 95 प्रतिष्ठाएँ मेरे हाथ से हुई आज तक, हर प्रांत में और हर जगह पर कलात्मक सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये तो हमारे देश की परंपरा है, चलती रहेगी। मोदी जी ने भी काफ़ी प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि भारतीय इतिहास को उन्होंने कायम बना के रखा है। सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ वो भी एक गौरव का विषय है। उसके बाद अनेक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार चालू रहा और लोगों की सुविधा के लिए तीर्थ स्थानों में सरकार ने भी सुंदर व्यवस्था की है। राम मंदिर। हाँ, और भारत का प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति का एक मंगल प्रतीक है, जिस राम को हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ जैन रामायण है। राम को परमात्मा के रूप में ही हमारे यहाँ माना जाता है जैन परंपरा में। और राम मंदिर का निर्माण, ये देश का एक अपूर्व इतिहास निर्माण हुआ है और काफ़ी सुंदर निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें सभी लोगों का सहयोग मिला है, क्योंकि ये तो राम की भूमि रही, महावीर की भूमि रही, तीर्थंकरों की, आज इनको अवतारी पुरुषों की भूमि रही और ऋषि मुनियों के चरणों से ये भूमि पवित्र बनी। हमारा पूरा भारत ये एक तीर्थ स्थान है। भारत पूरा ही एक तीर्थ स्थान है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संतों ने बहुत उपकार किया है, अपने उपदेश के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा बहुत कुछ इस देश को दिया है। साधुओं का काम तो देने का होता है, लेना कुछ नहीं है, देना सब कुछ है। तो अभी भी काफ़ी कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर ये स्वराज्य भी सुराज्य बन जाएगा। अभी तो स्वराज्य है, पर इसे और भी अधिक प्रयत्न करके सुराज्य बनाने का प्रयास करना है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतागण भी इस कार्य में सफल बने और यहाँ की प्रजा भी सुख शांति प्राप्त करे, आनंद मंगल करे। हमारे प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा में यही बोला जाता है, सभी आत्माओं को सुख शांति प्राप्त हो, मंगल कामना की जाती है।
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये मंगल कार्य किया जाता है। जरा भी इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आप सबों की शुभकामना इस कार्य में मिले, ये मेरा निवेदन है। तो कार्य तो चलता रहता है। ये देश आज तक हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारे देश की है, उसके बाद अन्य देशों का नाम आता है। इस देश ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। पूर्ण विज्ञान दिया है, मेडिकल साइंस दिया है, खगोल विद्या दी है, गणित का विद्या दिया है, सब कुछ। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए, राष्ट्रीय महापुरुष, कि जिन्होंने बहुत कुछ इस देश को दिया है। अब उसे पाने का प्रयास करना है, उसे समझने का प्रयास करना है। कोई कमी नहीं हमारे धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन तीर्थों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण करते हैं। ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। हर प्रकार के मानसिक दर्दी आते हैं, प्रभु से निवेदन करके मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। उन प्रार्थनाओं में ये विशेषता होती है। तो हमारी परंपरा कायम रहे, हमारी संस्कृति आबाद रहे और इस देश की प्रजा सुख शांति प्राप्त करे। इस मंगल प्रसंग पर मेरी यही हार्दिक शुभकामना है।